Okay, students, see here you can see chapter number 18, public debt. The last chapter which we have seen was the public expenditure, and now we're going to talk about the public debt. ठीक है, एकदम in general, in short, फटाफट देख लेते हैं कि क्या रहता है public debt basically. So the point which we're going to study here, the introduction, then the types of public debts and the fiscal solvency. कि public debt से कैसे fiscal अगर imbalance रहेगा, then how we can solve that. And then the burden of debt finance, that is external and the internal debt. Okay, so first we will talk about introduction. See, public debt or public borrowing is considered to be an important source of income for the government. If the revenue that is collected through taxes and the other sources is not adequate to cover government expenditure, the government may resort to borrowing. Such borrowing becomes necessary during times of financial crisis and emergencies such as wars, droughts, etc. So public debt is therefore one of the means to help bridge the gap between the public spending and revenue. See, when the government is prepared to go with the public debt, it is also the kind of a source of revenue for the government. ठीक है, लेकिन वो कब उसको प्रिफर करता है, when the taxes collection, whatever the tax has been collected by the government, if it is not sufficient, वो sufficient नहीं है expenditure करने के लिए, so at that time the government may going to have this, may going to borrow the public debt. लेकिन ये generally कौन से time पे होता है, when the government is doing such thing, when there will be the emergency situation in the economy that immediately they need to spend the money. अगर ये बहुत जरूरी है, इमरजेंसी है, और उस टाइम के लिए इमीडिएटली कुछ पैसा अवेलेबल नहीं है, एट दैट टाइम द गवर्नमेंट विल गो टू गो विद द पब्लिक डेब्ट हियर. ठीक है, सो इमरजेंसी जैसे उन्होंने कहा है कि वॉर का सिचुएशन है, ड्रॉट आ गया है, कुछ नेचुरल कैलामिटीज आ चुका है, सो एट दैट टाइम दे मे रिक्वायर दिस वन. ओके, now what are the types, or we can say the classification of public debt. Public debt may be classified in terms of the time of repayment, the purpose, condition of repayment, place of floating, and method of recovering the liability. अभी यहाँ पे क्या क्या टाइप्स, मतलब डिपेंड होता है कि कौन से पर्पस के लिए लिया जा रहा है, क्या कंडीशन है रीपेमेंट का, कौन सा प्लेस ऑफ फ्लोटिंग है, मेथड ऑफ रिकवरिंग द डेट लायबिलिटी क्या है, सब उसके अकॉर्डिंग पब्लिक डेट को क्लासिफाई किया जाता है. ठीक है, सो नाउ विल गोइंग टू टॉक अबाउट द वॉलंटरी एंड कंपल्सरी डेट केयर. देखो स्टूडेंट, एग्जाम में इसके बारे में एमसीक्यू आएंगे आपको, और बस आपको ये ध्यान में रखना है कि सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म डेट, तो उसमें क्या होता है, बस इतना ध्यान में रखो आप लोग, बिकॉज उसके बेस के ऊपर ही एमसीक्यू आएंगे. सी, वॉलंटरी एंड कंपल्सरी डेट. जनरली पब्लिक लोन्स आर वॉलंटरी इन नेचर. यूजुअली द गवर्नमेंट फ्लोट्स loan by issuing bonds or certificates. Individuals lend money to the government voluntarily by purchasing this security. Compulsory loan though are those which are raised by the government by using coercive method. Such loans are rare and may be undertaken during emergencies such as war. The rate of interest on such loan is low. Given the compulsion aspect, this loan seems to be resemble a tax, but they are repaid and repaid with the interest here. तो यहाँ पे जब हम लोग वॉलेंटरी की बात करते हैं, वॉलेंटरी मतलब अपनी मर्जी से वो डेप्ट करना, मतलब लोन लेना. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, द गवर्नमेंट फ्लोट लोन्स बाय इशूइंग बॉन्ड्स और सर्टिफिकेट. मतलब गवर्नमेंट का जो भी बॉन्ड्स एंड सर्टिफिकेट रहता है, वो जैसे वो सेल करने के लिए निकालेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट तो सेल करने के लिए निकालता है, और जैसे मैंने हमेशा कहा है कि ईच एंड एवरी बैंक आर बिहाइंड दिस काइंड ऑफ बॉन्ड्स एंड सर्टिफिकेट, बिकॉज दैट विल गोइंग टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू देम. और जिस बैंक के पास ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहेगा, ज्यादा बॉन्ड रहेगा, तो ऑब्वियसली वो बैंक को बहुत सिक्योर कहा जाता है. ओके, so at this point यहाँ पे not only the bank, even the individual, those who are very rich, they will going to get the like they will going to buy the certificate, और वो सर्टिफिकेट वो गवर्नमेंट से लेते हैं और गवर्नमेंट को पैसा लेंड करते हैं. ओके, यहाँ पे why I am saying the lend, because at the time suppose if that individual want to return back the certificate, so वहाँ पे गवर्नमेंट के पास पैसा होना चाहिए उस सर्टिफिकेट को खरीदने के लिए फिर से. ओके, so therefore I am saying here it is the lending the money, individual lend money to the government. Okay, तो ये हो गया वॉलेंटरी कि उसने अपनी मर्जी से वहां पे सर्टिफिकेट वगैरह
मतलब पब्लिक को देने के लिए तैयार रहता। एंड कंपलसरी लोन मतलब क्या होता है? कंपलसरी लोन मतलब ये बेसिकली इमरजेंसी टाइम पे लिया जाता है, ठीक है। और ये इमरजेंसी टाइम पे लिया, गवर्नमेंट इमरजेंसी पीरियड में ये लोन लेती है। एंड इनके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, दिस इज ऑल्सो वेरी लो। एंड देन अगेन गिवन द कंपल्शन एज पर दिस लोन सीम टू बी रिजेंबल अ टैक्स, मतलब यहाँ पे टैक्स रिजेंबल भी हम लोगों को मिल सकता है। बट दे आर रीपेड एंड रीपेड विद द इंटरेस्ट, लेकिन इसको जब रीपे किया जाता है तो उसको विद द इंटरेस्ट रीपे किया जाता है। ओके, ये हो गया तुम्हारा वॉलेंटरी एंड द कंपलसरी। वॉलेंटरी में गवर्नमेंट सर्टिफिकेट एंड द बॉन्ड्स को सेल करती, इशू करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कंपलसरी में, वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि मतलब लोन्स लेती ही है, जैसे कि अगर इमरजेंसी पीरियड है तो उस टाइम पे उसको जरूरत होती है पैसे की, तो वहाँ पे वो लोन लिया जाता है। और ऐसी सिचुएशन में अगर हम लोग लोन लेते हैं, मतलब गवर्नमेंट लोन लेता है, तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है और उनके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं रहता है। देन नेक्स्ट वन ईयर इंटरनल एंड द एक्सटर्नल डेट। इंटरनल लोन्स आर रेज्ड within the economy and subscribed to by its citizen and institution. It's repayable in domestic currency. It may be either voluntary or compulsory. It implies a redistribution of income and wealth within the economy and therefore is said to have no direct money burden. देखो, इंटरनल लोन्स मतलब क्या क्या होता है कि विद इन द इकोनॉमी ही लिया जाता है, मतलब अपने इकोनॉमी से ही वो पैसा लिया जाएगा। और वो पैसा दूसरा क्या रहता है कि वो पब्लिक के ऊपर ही खर्चा किया जाता है, ठीक है। तो यही जो लोन रहता है इंटरनल, दैट वी कैन से इट कैन बी वॉलेंटरी ऑल्सो, इट कैन बी द कंपल्सरी ऑल्सो। तो जैसे वो विद इन द इकोनॉमी लिया हुआ लोन है तो उसका कुछ ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा गवर्नमेंट के ऊपर। नाउ व्हेन वी से अबाउट द एक्सटर्नल लोन, so external loans are raised from foreign countries with the international institution. These loans are repayable in foreign currencies only. These loans help to undertake development program which probably would not be possible otherwise. They are usually voluntary. External loans involve a transfer of resources from a foreign country to the domestic country. When the principal and the interest are paid, it is transfer of resources in the reverse direction. देखो यहाँ पे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल लोन, तो एक्सटर्नल लोन मतलब क्या होता है कि हम लोग फॉरेन कंट्री से लोन लेते हैं, या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि व्हेन वी आर रीपेइंग दैट लोन, तो रीपेमेंट हमें फॉरेन कंट्रीज के करेंसीज में ही करना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा कि इंटरनल लोन्स विल नॉट बी दैट मच बर्डन फॉर द इकोनॉमी और फॉर द गवर्नमेंट, बिकॉज इंटरनल लोन्स वो विद इन इकोनॉमी रहता है तो वो अपने करेंसी में ही देना रहता है, तो इतना कुछ प्रेशराइज नहीं होता है। लेकिन एक्सटर्नल लोन अगर जब हम लोग लेते हैं, तो एक्सटर्नल लोन में क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट जब लेता है एक्सटर्नल लोन, तो एक्सटर्नल लोन में क्या होता है कि एक तो फॉरेन कंट्रीज से लिया रहता है, तो वहां पे अपना एक रेपुटेशन का भी नाम आता है कि वेदर वी आर रीपेइंग इट इन अ प्रॉपर मैनर और नॉट। और दूसरी बात ये होती है कि अपने पास भी, कंट्री के पास भी वो करेंसी अवेलेबल होना चाहिए उनको रीपे करने के लिए, उनके जो whatever currency in whatever currency they are giving us money, और उनका क्या डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंग वो करेंसी भी उस अपने कंट्री के पास होनी चाहिए, सो दैट वी कैन रीपे दैट अमाउंट इनटू देयर करेंसी ओनली, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि एक्सटर्नल लोन जनरली वॉलेंटरी होता है, बिकॉज एक्सटर्नल लोन डेवलपमेंट पर्पस के लिए ही लिया जाता है। तो यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज है वो फॉरेन कंट्रीज से हम लोग इंडिया में लेके मतलब अपने कंट्री में लेके आते हैं। तो ये हो जाता है आपका एक्सटर्नल डेब्ट। सी स्टूडेंट, वी हैव सीन द फोर टाइप्स। एक हम लोगों ने वॉलेंटरी देखा, वॉलेंटरी में गवर्नमेंट इशूइंग द बॉन्ड्स एंड शेयर सर्टिफिकेट रहता है। कंपलसरी डेब्ट में मतलब जब इमरजेंसी सिचुएशन है, ड्यूरिंग दैट टाइम द गवर्नमेंट इज गोइंग फॉर अ लोन। देन इंटरनल डेब्ट मतलब विद इन द इकोनॉमी लोन लिया जाता है, तो वो ज्यादा बर्डन नहीं रहता है, अपने ही करेंसी में पैसा देना पड़ता है, मतलब रिटर्न करना पड़ता है। एंड व्हेन विल टॉक अबाउट द एक्सटर्नल लोन, तो एक्सटर्नल लोन जनरली we have to pay it in a foreign currency, and it that external loan when we are demanding, so that will be basically for the developmental purpose only. तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि ये फॉरेन करेंसी में रीपेमेंट करना पड़ता है, सो इट इज अ काइंड ऑफ अ मतलब बर्डन टू द गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन ईयर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड द लॉन्ग टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट mature within a duration of 3 to 9 months. Generally, the rate of interest is very low. See, when we are talking about the short term, so it is less than 1 year. 1 year, ये ध्यान में रखो।
When I'm talking about the medium term, so medium term debt has a maturity period of anything between 1 year and 10 year. ठीक है, उन्होंने मीडियम टर्म लोन के लिए 10 years तक का कहा है, जनरली 5 years तक का रहता है, बट आई डोंट नो व्हाई दे हैव टेकन इट एज अ 10 year. ठीक है, देन ठीक है, चलो बुक में लिखा है तो हम लोग वी विल अज्यूम दैट इट विल बी 10 year. इट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट is at an international intermediate level between the short term and the long term debt. It is generally used for welfare program, and long term debt has a maturity period of 10 years or more. Generally it has a high rate of interest and is used for the developmental program also. तो यहाँ पे तुम्हें क्या ध्यान में रखना है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म. जब शॉर्ट टर्म की बात आएगी तो कितने दिनों के लिए रहेगा, सो दैट विल बी लेस देन 1 year. तो फ्रॉम 3 to 9 months के लिए वो डेप लिया जाता है, लोन लिया जाता है. इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम रहता है. मीडियम टर्म की बात करेंगे सो इट विल बी लाइक फ्रॉम द 1 year to 10 years तक का, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के मीडिएट में मतलब मीडियम लेवल पे रहता है. एंड देन द लॉन्ग टर्म डेट, इसका जो ड्यूरेशन रहेगा दैट विल बी मोर 10 years और मोर देन 10 years का, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा. ओके, यू जस्ट हैव टू कीप दिस पॉइंट ऑफ व्यू इनटू योर माइंड. तो यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट टर्म का पर्पस नहीं बताया है कि व्हाई द गवर्नमेंट इज गोइंग विद द शॉर्ट टर्म, बट फॉर द मीडियम टर्म दे आर सेइंग कि अगर हम लोग मीडियम टर्म लोन डिमांड करते हैं तो ये जनरली वेलफेयर प्रोग्राम के लिए डिमांड किया जाता है, एंड व्हेन वी आर डिमांडिंग द लॉन्ग टर्म डेट तो ये डेवलपमेंटल प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है. लेकिन आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एमसीक्यू नहीं आएगा. व्हेन दे आर आस्किंग अबाउट द शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड द लॉन्ग टर्म, so they will going to ask you about the duration only. तो आपको duration ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. Okay, now the next one here, redeemable and irredeemable. See, redeemable debt is repaid at some specific future date, and therefore the government has to make arrangement for the repayment of the principal and the interest within a specific time period. These loans are terminable. ठीक है, उन्होंने यहाँ पे रिडीमेबल में क्या कहा है कि जब हम लोग लोन लेते हैं तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए दिया जाएगा, उसका फ्यूचर डेट रहेगा रीपेमेंट करने के लिए करके. तो ये गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन रहता है कि वो रीपेमेंट का डेट आने से पहले ही हमें उसका रीपेमेंट करना चाहिए. ठीक है, विद द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट. ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही हमें वो कवर अप करना चाहिए. ओके, दैट इज रिडीमेबल डेट. Now the irredeemable debt is what? In the case of irredeemable debt, no definite date is promised for the final repayment, but interest is paid regularly. भले वहाँ पे कुछ फाइनल डेट दिया नहीं कि कब तक रिपे करना है, but we have to pay the interest. I mean, government have to pay the interest regularly. There is no fixed maturity period. The government therefore only makes arrangement for the payment of interest. Such debts are likely to become perpetual and therefore are considered to be undesirable on the grounds of sound finance. Such loan creates a burden as taxes would be raised to pay the debt in the future. Okay. तो redeemable and irredeemable में क्या डिफरेंस है? redeemable में हमें एक फ्यूचर मतलब एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि इस टाइम लिमिट के अंदर आपको वो पैसा रिपे करना है विद द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. But irredeemable में क्या होता है, they are not giving any time period for the future, but the problem is what, here we have till the time we are not completing that payment, वो प्रिंसिपल उनका पेमेंट नहीं पे नहीं करते तो हमें वहाँ पे कंटिन्यूसली रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है. So whoever is planning मतलब like if the government is with the sound finance, so definitely they will not going to prefer with the irredeemable debt. ठीक है, बिकॉज अगर हम लोग ऐसे टैक्स देते रहेंगे रहेंगे उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, so that's not good for the economy, ना, because rate of interest तो जा रहा है हमारा, and that's not a good sign. Okay, so this is what the irredeemable debt here. समझ में आ रहे हैं ना सारे पॉइंट्स का मीनिंग? यस, यस मैं मैम. आपको लास्ट में रिवाइज करवाऊंगी ये, बिकॉज इसके ऊपर ये चैप्टर में टाइप्स ऑफ पब्लिक डेट के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, then funded and unfunded debt. Funded or floating debt has a maturity period of at least 12 months at the time of issue. The period is generally longer than this and it may be even 30 years or more. Funded debt has an obligation to pay a fixed sum of interest subject to an option to the government to repay the principal. The government may repay the principal even before the maturity date.
गिवन फेवरेबल मार्केट कंडीशन। देखो फंडेड डेट में क्या होता है, फंडेड डेट में मैच्योरिटी पीरियड होता है उसका एटलीस्ट 12 मंथ का एट द टाइम ऑफ इशू, ठीक है। और ये फंड को हम लोग ज्यादा सालों के लिए भी ले सकते हैं, दैट कुड बी अराउंड 30 ईयर्स तक भी ले सकते हैं। लेकिन फंडेड डेट का एक स्पेशलिटी क्या, मतलब वहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है कि वहाँ पे फिक्स सम ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, मतलब टोटल इंटरेस्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंटरेस्ट बचाने के लिए हम लोगों ने मतलब रीपे थोड़ा फास्ट कर देते हैं वहां पे। लेकिन फंडेड में क्या होता है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू द ऑप्शन टू द गवर्नमेंट टू रीपे द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल भी आपको फिर वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर दे दो तो उतना सम ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा। इफ यू आर नॉट एबल टू रीपे द इंटरेस्ट सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट विद इन दैट पीरियड, देन आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वहां पे जाएगा ही जाएगा, और वो भी फिक्स सम ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसे नहीं कि मंथली वाला सम ऑफ इंटरेस्ट, मतलब टोटल हम लोग आपसे इतना इंटरेस्ट लेंगे, लेने वाले तो उतना लेने ही वाले हैं। दैट इज द वे। नाउ अनफंडेड डेट हैज एन ऑब्लिगेशन टू पे द ड्यू डेट विद द इंटरेस्ट, okay, then these debts have a short duration of say 1 year. Unfunded debts are incurred to meet temporary needs of the government. The rate of interest paid is very low. तो अनफंडेड में क्या होता है कि वहां पे भी ऑब्लिगेशन रहता है टू पे द अमाउंट एट द ड्यू डेट विद द इंटरेस्ट, मतलब जो भी उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि ये लेस देन 1 ईयर के लिए लिया जाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लिया जाता है अनफंडेड डेट का। और अनफंडेड डेट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है इट इज ऑल्सो वेरी लो। लेकिन यहाँ पे जो भी डेट है उसके अंदर ही हमें प्रिंसिपल अमाउंट विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट वी नीड टू पे दैट। और अनफंडेड डेट गवर्नमेंट कब प्रिफर करता है, व्हेन दे आर हैविंग एनी टेम्पररी नीड्स, ओके। दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन फंडेड एंड अनफंडेड डेट। फिर से रिकॉल करने के लिए, फंडेड डेट जो रहता है वो हम लोग 12 मंथ्स के लिए या फिर मैक्स टू मैक्स 30 ईयर्स के लिए ले सकते हैं। फंडेड डेट में अगर हम लोगों ने टाइम पे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं रिपे किया तो वो लोग एक सम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करेंगे, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें प्रिंसिपल के साथ में वो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उनको देना ही पड़ेगा। दैट इज योर फंडेड डेट। अनफंडेड डेट में क्या रहता है, अनफंडेड डेट में गवर्नमेंट के पास ऑब्लिगेशन होता है कि उसका जो रीपेमेंट रहेगा वो लोन का, वो एक पर्टिकुलर डेट के अंदर ही देना चाहिए विद द इंटरेस्ट, और उसका जो ड्यूरेशन रहेगा दैट विल बी लेस देन 1 ईयर। और अनफंडेड डेट जनरली गवर्नमेंट कब डिमांड करता है, जब टेम्पररी नीड्स रहेगा, मतलब जैसे अभी फिलहाल मुझे जरूरत है पैसों की, ऐसा अगर टेम्पररी नीड्स रहेगा so that will be at that time the government will go with the unfunded debt here, okay. Now the last one here, productive and the unproductive, that is derivative debt. Public debt is said to be productive when it is raised for the productive purpose and is used to add to the productive capacity of the economy. According to Dalton, his economics, productive debts are those which are fully covered by asset of equal or greater value. The interest and the principal amount is paid out of the income earned by the government from this project. These debts are self-liquidating and do not impose a burden on society. Example include debt. Example include debt incurred for the purpose of construction of railways, irrigation project and the power generation. See, प्रोडक्टिव डेट मतलब क्या होता है कि ये जो लोन लेते हैं वो बेसिकली प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए लिया जाता है, मतलब प्रोडक्टिव पर्पस के लिए ये लोन को बेसिकली लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट भी देते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट कब दिया जाता है कि जब मतलब जैसे उन्होंने रेलवेज कंस्ट्रक्ट किया तो रेलवेज के थ्रू जितना इनकम अर्न हुआ है तो वो प्रोजेक्ट के थ्रू जो भी इनकम होता है उससे उनका इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट पे किया जाता है, ओके। नाउ व्हेन विल टॉक अबाउट द अनप्रोडक्टिव डेब्ट, the unproductive debts are those which do not add to the productive capacity of the economy. Such debts are not necessarily self-liquidating. The interest and the principal amount have to be paid from other sources of revenue, generally by imposing taxes, and therefore such debts are burden on society. अनप्रोडक्टिव डेब्ट मतलब ये कोई प्रोडक्टिव पर्पस के लिए तो यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पे जो भी पैसा रहेगा वो गवर्नमेंट को विद द इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ता है। और मतलब जो भी टैक्सेस के थ्रू जो भी रिवेन्यू आता है, बिकॉज ये प्रोडक्टिव चीजों के ऊपर तो उन्होंने खर्चा नहीं किया है, तो ऑब्वियसली उनको कुछ एडिशनल इनकम तो नहीं आने वाला है। तो वट एवर इज गवर्नमेंट प्रीवियस इनकम थ्रू द टैक्सेस, वो टैक्सेस के थ्रू ही उनको उसका रीपेमेंट करना पड़ता है। और
टैक्सेस के थ्रू करना पड़ता है करके इट इज अ काइंड ऑफ अ बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट, लेट्स हैव द रिवीजन ऑन दिस पॉइंट। चलो मुझे फटाफट बताओ अभी तुम लोग, वॉलेंटरी एंड कंपलसरी डेब्ट मतलब क्या होता है? बोलो स्टूडेंट, वॉलेंटरी डेब्ट मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट कैसे वॉलेंटरी लोन देता है? आई मीन हाँ, कैसे करेगा वो लोन, कैसे रेज करेगा, उनके लिए पैसा कैसा रेज करेगा गवर्नमेंट, क्या वो इशू करेगा? बॉन्ड और सर्टिफिकेट में। हाँ, बॉन्ड एंड सर्टिफिकेट इशू करेगा, ठीक है। कंपलसरी लोन में क्या होता है, ये कब गवर्नमेंट बेसिकली लेता है कंपलसरी लोन, क्यों जरूरत पड़ता है उसको? इमरजेंसी टाइप मैम। हाँ, इमरजेंसी टाइम पे उन्हें जरूरत पड़ता है, ठीक है। और इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा रहेगा, कम रहता है ज्यादा रहता है? मैम वेरी हाई लो मैम। रहता है। हाँ, लो रहेगा, ठीक है। लो। और लेकिन ये टैक्स रिजनेबल भी करता है। चलो, व्हेन में इंटरनल डेब्ट किसको कहा जाएगा? जो पैसा है वो विद इन द इकोनॉमी से लिया जाएगा या बाहर की इकोनॉमी से लिया जाएगा? विदिन द इकोनॉमी। विद इन द इकोनॉमी। एंड एक्सटर्नल डेब्ट जो रहेगा वो लोन कहाँ से लिया जाएगा? आउटसाइड ऑफ द इकोनॉमी। वेरी गुड। एंड देन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए क्या पीरियड रहता है, लोन का ड्यूरेशन क्या रहेगा? 1 ईयर 3 मैम। to लेस देन 1 1 year. ईयर, 3 to 9 मंथ्स का। मीडियम, और इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए? Low मैम। हाँ, मैम मीडियम टर्म का ड्यूरेशन बताओ। 1 वन अबव ईयर। 1 ईयर। हाँ, और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, मीडियम ही रहेगा। लॉन्ग टर्म का ड्यूरेशन क्या रहेगा? 10 years मैम। हाँ, 10 ईयर्स और मोर देन 10 और ईयर्स, मोर। ठीक है। 10 ईयर्स, जस्ट 10 ईयर्स नहीं बोलेगा, 10 ईयर्स से ज्यादा। और लॉन्ग टर्म के लिए फिर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, हाई और लो? हाई High रेट। हाँ, high rate of interest. यस। रिडीमेबल डेब्ट है, रिडीमेबल डेब्ट है मतलब यहाँ पे जो रीपेमेंट रहेगा उसके लिए एक टाइम पीरियड दिया जाता है या नहीं दिया जाता है रिडीमेबल डेब्ट में? दिया जाता है मैम। हाँ, दिया जाता है, ठीक है। Time period. एंड ई रिडीमेबल डेब्ट में क्या रहता है, टाइम पीरियड रहता है? No मैम। नहीं। रहता बेसिकली है। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, जब तक प्रिंसिपल अमाउंट पूरा कवर अप नहीं होता तब तक क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? इंटरेस्ट पेड करना इंटरेस्ट पे पड़ेगा करना मैम। पड़ेगा, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट है फंडेड एंड अनफंडेड। अभी मुझे ये बताओ कि फंडेड का मैच्योरिटी पीरियड क्या रहेगा? 12 मंथ्स। हाँ, और मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा? 30 year मैम। 30 ईयर्स तक 30 का years जाएगा, or more। वेरी गुड, ठीक है। एंड ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अनफंडेड, तो अनफंडेड के लिए क्या मैच्योरिटी रहेगा? 1 ईयर। हाँ, 1 ईयर तक का रहेगा, ठीक है। और अनफंडेड डेट बेसिकली गवर्नमेंट क्यों लेता है? टेम्पररी फंड नीड। टेम्पोररी टेम्परेरी नीड्स नीड्स ऑफ के लिए। द गवर्नमेंट। हाँ, यस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्टिव डेब्ट, तो प्रोडक्टिव डेब्ट में लोन किन चीजों के लिए लिया जाता है? फॉर द प्रोडक्टिव पर्पसेस ऑफ हाँ, द फॉर द इकोनॉमी। प्रोडक्टिव पर्पस। और उसका जो भी रीपेमेंट होएगा वो कहाँ से दिया जाएगा, टैक्स के पैसे से दिया जाएगा या दूसरा कहाँ से दिया जाएगा? टैक्स मैम। नहीं, प्रोडक्टिव में क्या होता है कि जो वो लोग जिस जिस प्रोडक्ट की चीजों के ऊपर वो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में वो प्रोजेक्ट से जो रिवेन्यू आएगा उसके थ्रू वो रिवेन्यू के थ्रू वो लोग प्रोडक्टिव डेब्ट का पैसा रीपे करते हैं, ठीक है। अनप्रोडक्टिव में क्या होता है कि, अच्छा तुम लोग मुझे बताओ, अनप्रोडक्टिव में गवर्नमेंट कोई प्रोडक्टिव चीजों के ऊपर यहाँ पे पैसा उसके लिए लोन ले रहा है या अनप्रोडक्टिव चीजों के लिए लोन ले रहा है? अनप्रोडक्टिव मैम। अनप्रोडक्टिव के लिए, ठीक है। अभी इसका जो अमाउंट रीपेमेंट करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो किन पैसों से रीपेमेंट किया जाएगा? फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। हाँ, मतलब टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू से वो देना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट के लिए बर्डन होता है या नहीं होता है? यस मैम, बर्डन होता इसका है। बर्डन। यस मैम। हाँ, very good, very good। चलो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, नाउ विल गोइंग टू सी द अटेंडेंस। टाइम कितना बाकी, ओनली 4 मिनट।
See, I'm giving the attendance. You just see whether I'm giving it correctly or not. I think I have given to everyone. Yes, student? Yes. Yes. Shall I end the meeting? Bye, student. Bye, ma'am. Yes, ma'am.